let me repeat again because Mridul was on the way. तो फारूक जी आप सुन रहे हैं? जी सर। हाँ, हमने कहा था आपको कि उस पेज का कैमरा से फोटो खींच के हमको भेजिए। जी जी। हम आपकी बात समझ गए थे। क्या होता है कि जैसे आपने कहा ना कि वाइट बैलेंस के लिए कि ग्रे कार्ड यूज करके किताब में लिखा है कि बाद में कैमरा को सेट करना पड़ता है ना? जी 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 सर। तो जो ट्रू नहीं है वो एक्सपोजर के लिए करना पड़ता है, ठीक है? एक्सपोजर मेजरमेंट करने के लिए अगर ग्रे कार्ड यूज करेंगे देन यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ अपर्चर एंड shutter speed and then set the camera accordingly. Okay, so now आपको बाद में फंडा क्लियर हो जाएगा. So gray card can be used for two purposes. One, to measure the exposure value. Second, to get the correct white balance. And gray card must be hold vertically at a 90 degree, not tilted any side. Now, when you are shooting a landscape, if you are shooting a portrait, it's not a problem. You ask the subject to hold the gray card just in front of her nose or lips. Okay. If it is a landscape, you cannot keep the gray card far away at the extreme end. So nearby your camera, you can ask someone to hold the gray card and then you can get the measurement of the exposure. Here is the most important part. Fill the frame with gray card for an accurate reading. Okay, which is not always possible, but if you can fill the frame with the gray card, definitely you will get 100% accuracy. If you are keeping gray card maybe 10, 20 or 30% in the frame, even then you will get more than 95% accuracy of exposure. Then how to get exposure and how to set the camera? First of all, you switch your camera in aperture priority mode. Metering mode will be a spot metering. Okay, and then you just focus the subject. Okay, because in spot metering you cannot focus the gray card because gray card is a plain surface. There is no contrast. So you focus anywhere, maybe on the nose or any tree, doesn't matter. After focusing, you you just move your square of metering and focus on the gray card. The moment you move the square on gray card, you will find some change in the value of shutter speed because in aperture priority, your f value is already set. Am I correct? Is it clear? Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. In aperture priority, your ISO and f value is already set. Simply there will be change in the shutter speed. Say you have kept at f8, ISO maybe 200 or 400, and you are getting a shutter speed of say 1 by 100 second. Simply you switch over to the manual mode. Aperture will remain same, ISO will remain same. Simply you have to readjust the shutter speed to 1 by 100 second. Okay, and then click. This is the best way of using gray card for exposure. सर हाँ पूछिए. मान लीजिए जो अपर्चर है वो हमने मान लीजिए 10, 12, 13 कुछ रखा. हाँ हाँ. जब हम उसका स्पॉट मीटरिंग में दूसरा कहीं फोकस कर रहे हैं, हाँ, तो उसका ISO अलग आएगा. ISO नहीं अलग आएगा ना. ISO तो आपने फिक्स कर लिया. एक्सपोजर ट्रायंगल का 3 पार्ट है ना ISO नहीं, शटर स्पीड तो दूसरा आएगा. सॉरी. yes only the shutter speed will change. शटर स्पीड चेंज हो गया. तो मान लीजिए 1/200 आया. हाँ ठीक है. फिर ग्रे कार्ड में लाए ना सर, मीटरिंग स्पॉट जो चौड़ा वाला होता है, ग्रे कार्ड में लाए तो मान लीजिए 1/250 आया. ठीक है. तो अब 2 ठो शटर स्पीड हमको मिला.
दो नहीं मिला ना, एक ही मिला। ग्रे कार्ड के सामने जब स्क्वायर लाओगे आप, वो जी। जो एक्सपोजर मिलेगा दैट इज द करेक्ट एक्सपोजर। तो फिर हम दूसरा में काहे ले रहे हैं? दूसरा नहीं लोगे आप तो पहला जो है मीटरिंग आप कहीं और किए हो, जो ग्रे नहीं है, जो ब्लू है, ग्रीन है, व्हाइट है। बात समझ गए ना? नहीं क्लियर हुआ? चलो हम अभी जब दिखाएंगे लाइव तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हम पूरा क्लियर करेंगे आज, ये बहुत जरूरी है क्लियर होना। अभी पोस्ट प्रोसेसिंग की बात नहीं करेंगे, ठीक है? अभी पहले हम ये आपका फंडा क्लियर कर देंगे। नहीं, इसमें एक और पार्ट था। अरे कैसे हट गया ये? वेट वेट, थोड़ा गड़बड़ हो गया हमारे स्लाइड में। वेट। हाँ, इसको ध्यान से सुनो आप लोग। ये मीटरिंग का फंडामेंटल है। कैमरा सिर्फ ग्रे कलर देखता है, कैमरा व्हाइट और ब्लैक नहीं देखता है। ये कहीं लिख के आप रख लो, ये फंडामेंटल है मीटरिंग का। वो हम दिखाएंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, जो आज ही शाम को शूट किया आप लोगों के लिए। ये मेरे पास ग्रे कार्ड है 3 रंग का। तीनों रंग वही काम करता है, जो ग्रे करता है वही व्हाइट करता है, वही ब्लैक करता है, ठीक है? अब जो हमने पहले बताया दैट कैमरा सीज ओनली ग्रे कलर, ये हमने क्यों कहा ये देखो आप। हमने मीटर किया व्हाइट कार्ड पे, ठीक है? ये जो व्हाइट कार्ड है इस पर हमने मीटर किया, लेकिन फोटो में क्या दिख रहा है? वो व्हाइट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ग्रे जैसा। ग्रे दिख रहा है। यही अब आगे देखो आप खेला। अब हमने मीटर किया ब्लैक पे, ठीक है? कैमरा स्टैंड पे है, एपर्चर प्रायोरिटी है, हमने मीटर किया ब्लैक पे। ब्लैक, क्या ब्लैक दिख रहा है? ग्रे का करीब आ गया। ग्रे दिख रहा है ना? ग्रे दिख रहा इसीलिए, है। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि कैमरा सिर्फ ग्रे रंग ही दिखता है, देखता है, ठीक है? अब सबका सही रंग देखने के लिए क्या तरीका है? फॉर मीटरिंग द ग्रे कार्ड। अब यहीं पे हमने ग्रे कार्ड पे मीटरिंग किया। अब देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, और ग्रे तो ग्रे दिखेगा। कुछ डाउट है इसमें? बताओ आप लोग। ये बहुत मोस्ट फंडामेंटल चीज है जो हमने आप लोगों को बताने के लिए शूट किया। सर 3 सेट क्यों देता है ये व्हाइट हाँ? ब्लैक और ग्रे? देखो क्या है। सर ये कार्ड लेने पे 3 सेट क्यों? हाँ नहीं नहीं, यू कैन यूज एनी वन। ग्रे इज द परफेक्ट, बट ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने व्हाइट यूज किया यहाँ के लिए तो क्या होता है, व्हाइट कैसा दिखता है, ठीक है ना? जो व्हाइट बैलेंस करेक्शन के लिए यूज है वो अलग चीज है। ये हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये कैमरा सिर्फ ग्रे देखता है। इसको व्हाइट बैलेंस करेक्शन में ग्रे कार्ड के यूज से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि व्हाइट बैलेंस करेक्शन में ग्रे कार्ड का जो 3 कलर है, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। ग्रे भी, व्हाइट भी और ब्लैक भी, बिकॉज ब्लैक इज RGB 000, whereas white is RGB 255 255 255। ओके, सो अगर आपका कोई इमेज है जिसमें पहले से व्हाइट बैलेंस करेक्टेड नहीं है, तो उस इमेज में कहीं पे जो एकदम व्हाइट है, व्हाइट मतलब कि 255 255 255, वहां पे आप व्हाइट बैलेंस पिकर से क्लिक करोगे, आपका व्हाइट बैलेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके फ्रेम में ग्रे तो मिलना मुश्किल है, ठीक है? दूसरा है कहीं जो उसमें ब्लैक कलर है जिसका की वैल्यू RGB का 000 है, वहां भी क्लिक करोगे तो आपका व्हाइट बैलेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अभी इतना ही कि कैमरा सीज ओनली ग्रे कलर। सर हाँ, जब ग्रे कलर देखता है तो फिर सारे कलर कैसे उसकी फोटो पे आते हैं? इसीलिए कि कैमरा का जो सेंसर है वो ग्रे कलर पर ही कैलिब्रेट किया हुआ है, ठीक है?
तो जी जब ग्रे कलर देखेगा तभी उसका प्रॉपर एक्सपोजर भी मिलेगा, प्रॉपर वाइट बैलेंस भी मिलेगा। ठीक है, जी 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 ओके। तो अभी दिखा दिया ना कि हमने व्हाइट को मीटर किया, क्लिक किया तो ग्रे हो गया, जी सर। ब्लैक को मीटर किया, क्लिक किया तो ग्रे हो गया। लेकिन जब हमने ग्रे को मीटर किया, क्लिक किया तो तीनों का कलर सेम आ गया, सही आ सारे गया। कलर ठीक है, ठीक। अभी इसको हम दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल। अभी हम स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं फॉर टाइम बिंग, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर के लिए हम अपना हरा पर्दा हटा ही लें। इसको भी ठीक कर दें। जो होता तो आपको दिख रहा है मेरा सेटअप? जी सर। यस सर। ये देखो, ये एक टेबल है तो हमने देख पा रहे हैं। लाइट दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। बिल्कुल है ना। टेबल पे व्हाइट मैंने प्रिंटेड क्लॉथ रख के ऊपर मैंने ग्रे कार्ड रखा, ठीक है। अब इसको हम अभी हमने क्या किया, कैमरे से हमने फोकस कर लिया कहीं दूसरे सरफेस पे, और पहले हम बिल्कुल जहाँ फोकस किया है वहां पर क्लिक करके दिखा। ये
ये हमने यहाँ पे कहीं फोकस किया, बिकॉज फोकस करने के लिए कंट्रास्ट चाहिए। तो दिस इज ए सिंपल क्लिक। सर अब स्क्रीन हम क्या, शेयर नहीं है, हाँ, स्क्रीन शेयर सर, स्क्रीन शेयर नहीं है। वो स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ओके ओके, वेट 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 वेट। अभी दिख रहा है? यस सर। यस यस यस। अभी दिखा? यस सर। हाँ, तो हमने अभी क्या किया, वहां पे ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कार्ड रख के यहाँ जो लिखा हुआ है FAP समथिंग, वहां पे हमने फोकस किया, क्योंकि किसी भी एक कार्ड पे चूंकि कंट्रास्ट नहीं है तो फोकस नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप डॉक्टर? एनीथिंग? ना सर ना, ठीक। ओके। अब हम सबसे पहले ये ब्लैक पर जो मीटरिंग का स्क्वायर है वो ले जाके फोटो क्लिक करते हैं। पहले हम यहाँ पे जो एक्सपोजर कंपनसेशन है उसको 0 कर दें। आज हम इसका भी फंडा क्लियर करेंगे कि एक्सपोजर कंपनसेशन क्या चीज है। Let me make it 0. जीरो कहाँ गया? यहाँ है 0। हाँ, 0। हमने कंपनसेशन 0 कर दिया। अब हम सिर्फ ब्लैक को करेंगे पहले। अभी ब्लैक हमने स्क्वायर रख के और क्लिक किया। सर ये जो सेंटर फोकसिंग जब हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब वो जहां पर वो फोकस पॉइंट हम फिक्स कर रहे हैं उसी जगह पर ही उसको रीड करेगा ना, कलर को, देखिए, मीटरिंग को। जो स्क्वायर है वो दो काम करता है, मीटरिंग भी करता है और फोकस भी करता है। फोकसिंग भी करता है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। अब क्या है कि चूंकि हमको तो फ्रेम को तो फोकस करना पड़ेगा ना, हाँ 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 तो अगर हम मान लिया कि यहाँ पे करेंगे फोकस कार्ड पे तो हाँ। फोकस नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ कंट्रास्ट नहीं है। अच्छा तो हमको कहीं एज पे करना पड़ेगा फोकस। अच्छा। एज पे फोकस करके इसके बाद में हम फोकस को मैनुअल में कर देंगे। मैनुअल में करके फिर हम एपर्चर प्रायोरिटी में, नॉट ए कैमरा इन मैनुअल मोड, ओनली द ऑटो फोकस विल बी इन मैनुअल। ओ, ठीक है ना? नॉट यही द पे कैमरा कंफ्यूजन मोड होता इज मैनुअल, याद रखिए, ठीक है? है। तो अभी हमने वो, अब हम हमारा ये बस। फोकस मोड मैनुअल है, और अभी हम ब्लैक पर वो स्क्वाड को ले जाके, क्योंकि आपको फोकस नहीं करना, ऑलरेडी फोकस है मेरा फ्रेम, ठीक है? ब्लैक पे जाके हमने क्लिक किया। अब देखिए क्या आ रहा है। ब्लैक पे किया हमने, तो ब्लैक इज नॉट ब्लैक, ठीक है? अब हम करेंगे व्हाइट पे। इसमें तो सब ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है। एकदम ब्लैक का हम कलर दिखाएगा, तो ब्लैक नहीं है, हल्का ग्रे है। बस दोबारा हम ब्लैक वाला खींच लें। पर दोबारा है ब्लैक वाला। हाँ, देखे, ब्लैक इज नॉट एग्जैक्टली ब्लैक। अब हम ले जा रहे हैं व्हाइट। लाइट हो गया। अब हम ले जा रहे हैं व्हाइट में। ये व्हाइट पे रख के क्लिक किए।
फर्क आया? व्हाइट भी व्हाइट नहीं रह के हल्का ग्रेइश हो गया। Grayish अब हो हम ग्रे कार्ड पे लागू कर रहे हैं। Now this is on gray card. Now you see, हाँ, देखा आपने फर्क? ग्रे कार्ड पे करते ही एक्सपोजर भी ठीक हो गया है और कलर करेक्शन भी हो गया। क्लियर? दिस इज ऑन ग्रे कार्ड, दिस इज ऑन व्हाइट कार्ड, दिस इज ऑन ब्लैक कार्ड। फर्क देखा आपने? जी हाँ सर, ग्रे कार्ड में बहुत परफेक्ट है। बहुत माने एक्यूरेसी आ जाता है। ये है ग्रे कार्ड। और ग्रे कार्ड जो है एक तरह से आपके फोटोग्राफी की जान है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत बढ़िया फोटो खींचेंगे। अब हम आ रहे हैं, ये तो मालूम पड़ गया आपको, ठीक है? क्वेश्चन है सर। एकदम पूछिए, एकदम पूछिए। सर आप जो जब सॉफ्टवेयर यूज करना है ना, तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या सर? ये आपको दिखाने के लिए, ये है दिखाने के लिए। ये डीजी कैम करके है। सॉरी सर। एक मिनट। हाँ चंदन, हाँ अभी तो मेरा क्लास चल रहा है ऑनलाइन, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ फिर से पूछिए, बीच में फोन आ गया। उसका सॉफ्टवेयर का नाम क्या है सर? डीजी कैम। जी कैन। हाँ सर हाँ, एक तो क्वेश्चन है। एकदम पूछो। ये यहाँ पे जितना देर लगाओगे, रात का 12 बज जाएगा, हम बताते रहेंगे, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना, मेरा एफर्ट्स कामयाब नहीं होगा। हाँ बोलो आप। मान लीजिए कोई वस्तु का हम जब फोटो ले रहे हैं, उसका सामने जैसे बोले आप ग्रे कार्ड पकड़ के हम स्पॉट मीटरिंग करके फोटो ले लिए। उसके बाद हम स्पॉट से हट के सेंटर वेटेड या दूसरा मीटरिंग मोड में चल गए, कैमरा को मैनुअल में रख के, तो मीटरिंग मोड नहीं, एपर्चर प्रायोरिटी मोड में ही रहना है ना? ये आपको हम दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा कंफ्यूज मत करो आप। अभी इतना ही समझो कि ग्रे कार्ड का यूज करने से यू गेट ए परफेक्ट एक्सपोजर। नहीं, मेरा क्वेश्चन तो हम मीटरिंग मोड को चेंज करने के बारे में बोल रहे हैं। जैसे हम कोई मान लीजिए अभी वहां मत जाओ, लैंडस्केप लेंगे, वो ठीक है, वो बात, वो चीज अलग है। अभी जो बता रहे हैं उसी को जानो। अभी हम जो मीटरिंग की बात है, स्पॉट मीटरिंग, मैट्रिक्स मीटरिंग और सेंटर वेटेड, उसकी हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। ये चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अभी आपको हम सिर्फ समझा रहे हैं हाउ टू गेट परफेक्ट एक्सपोजर एंड परफेक्ट वाइट बैलेंस। अभी जो हम बोल रहे हैं उसको नोट कर लो आप, कि आपको एपर्चर प्रायोरिटी में ही ये सब काम करना है। अब बता रहे हैं, एपर्चर प्रायोरिटी में कर लिए, अब हम जाके यहाँ से नोट कर रहे हैं मेरा क्या क्या वैल्यू है। देखो यहाँ पे मेरा वैल्यू है, टेम्परेचर है 1010 पे, ठीक है? शटर स्पीड इसमें नहीं दिखा रहा है क्या? 1/10 है शटर स्पीड, ठीक है? ओके। हाँ सर, तो ये हमने एपर्चर प्रायोरिटी में ग्रे कार्ड पे रख के हमको ये वैल्यू मिला, ठीक है? अब हम जाके एपर्चर प्रायोरिटी को मैनुअल में करेंगे, और मैनुअल में करके मेरा तो एपर्चर 10 ही रहेगा, ठीक है? ISO रहेगा 1000। गॉट इट? सिर्फ मेरा चेंज होगा शटर स्पीड, तो उसको हम 1/10 पे लाके फिर फोटो क्लिक करेंगे। अभी हम मैनुअल मोड में गए, और इसको 1/10 पे ला दिए। अभी देखिए आप यहाँ पे 1/10 हो गया शटर स्पीड, एपर्चर भी 10 हो गया। ISO को तो वही रखना है। अब हम दूसरा क्लिक करेंगे, एकदम सेम फोटो आएगा। वो क्लिक तो यहीं से कर सकते हैं। अब हमने क्लिक किया,
देखे एकदम सेम आया। ये अभी क्या है, मैनुअल मोड में, और ये एपर्चर प्रायोरिटी मोड में है। एक मिनट थोड़ा सा और हम देखते हैं कहाँ। ठीक है, अभी हम गए मैनुअल में और क्लिक किया। दिखा आपको, एकदम सेम आ रहा है। जी ठीक है, जी, अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पे रखा है। अब हम चले गए मैनुअल में। अब हम मैनुअल में जो फोकस हम रखे हैं मैनुअल में, उसको हम ऑटो फोकस कर लेंगे, क्योंकि हमको मिल गया व्हाइट बैलेंस। ऑटो फोकस करके हम फ्रेम पूरा चेंज करके फोटो खींच के दिखा रहे हैं। देखो आप, एकदम सेम है, एकदम सेम है। एकदम ये पहले का फ्रेम था, हम इसको थोड़ा वाइड कर दिए, क्योंकि हमारे पास हमने क्या किया है पहले, अब दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ग्रे कार्ड पे मीटरिंग किया, एपर्चर प्रायोरिटी स्पॉट मीटरिंग में, और वो जो वैल्यू आया हमने मैनुअल में चेंज किया। चेंज करके जो हमने लिया फोटो सेम फ्रेम में, वो सेम आया। अब हमने फ्रेम चेंज कर लिया, तो नाउ यू सी द एक्सपोजर इज सेम एंड कलर इज सेम। क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं सर, हम बोल रहे हैं, हाँ। हम ये ले लिए अपना वाइट बैलेंस, जो ये ग्रे कार्ड में ले लिए। हमारा प्रश्न ही है, जो हम मीटरिंग मोड चेंज कर सकते हैं कि नहीं? जैसे आप इससे देखो, अपर्चर से नहीं, मैनुअल मीटरिंग में, मोड अगर आपको ग्रे कार्ड का यूज करना है तो मीटरिंग मोड चेंज अभी नहीं करना है। कब करना है? जब आपका मैनुअल मोड में आ गया, तो जी। मैनुअल मोड में तो आपका मीटरिंग मोड भी काम नहीं करेगा ना, ओ अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। है ना। अभी आप हम लोग मैनुअल मोड में हैं, ठीक है ना। फोकस मेरा ऑटो फोकस है। अब दिखा रहे हैं कमाल, एक्सपोजर कंपनसेशन का क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो, हमने एक्सपोजर कंपनसेशन कर लिया, +2 किया, ठीक है, और क्लिक किया। इसका नहीं, सॉरी, हम गलती बोल रहे हैं। अभी हमारा कैमरा मोड है मैनुअल में। मैनुअल में एक्सपोजर कंपनसेशन काम नहीं करता है, तो हमको जाना पड़ेगा एपर्चर प्रायोरिटी में, तब आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। हाँ, अभी मेरा एपर्चर प्रायोरिटी है, क्योंकि एक्सपोजर कंपनसेशन मैनुअल मोड में काम नहीं करता है, वो एपर्चर प्रायोरिटी में, शटर प्रायोरिटी में ही काम करता है, ठीक है। हमने इसको +2 किया,
+2 करके हमने क्लिक किया, देखो क्या आता है अब। क्या हुआ फर्क? एक्सपोजर ज्यादा हो गया सर। तो ज्यादा नहीं हुआ एक्सपोजर, क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। अच्छा। +2 करने से ब्लैक इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्रे। ओके, अभी आपको दिखा रहे हैं एक और चीज, अभी अभी और क्लियर करेंगे आपका। अब इसको हम माइनस में किए, -2 किया हमने कंपनसेशन, ठीक है, और हमने क्लिक किया। अब नाउ ब्लैक इज लुकिंग लाइक ए ब्लैक, समझ गया ना? तो क्या होता है, अगर आपको व्हाइट पर करना है, आपका मेन सब्जेक्ट है, तो एक्सपोजर कंपनसेशन विल गो टुवर्ड्स प्लस साइड। अगर डार्क कलर पे करना है तो जाएगा माइनस कंपनसेशन। अभी आप जैसे ये ब्लैक हो गया, माइनस करने से ब्लैक इज बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट, और ये जो हमने प्लस किया था तो क्या हो गया, व्हाइट इज कमिंग मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। अभी इसको अभी और दिखाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए आप। अभी हमने ये +2 है, ये -2 है, ठीक है, याद है ना? ओके, जस्ट होल्ड करें आप लोग, अभी हम फोटोशॉप खोल रहे हैं। तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये हम जो लास्ट 2 फोटो है, ये लास्ट 2 फोटो, इसको उठा के यहाँ से ला रहे हैं फोटोशॉप में। एक एक करके आएगा, क्योंकि ये इसको जेपेग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको ऐसे ही ओपन कर दे रहे हैं बिना एनी करेक्शन, ठीक है। ओपन करके हम इसको सेव कर रहे हैं। ये इमेज है जबकि हमने एक्सपोजर कंपनसेशन +2 रखा था, ठीक है। अब दूसरे इमेज को ला रहे हैं यहाँ पे, दूसरा इमेज, क्योंकि रॉ है तो हमको आना पड़ेगा फोटोशॉप में उसको जेपेग में कन्वर्ट करने के लिए। हम यहाँ कोई करेक्शन नहीं कर रहे हैं, जस्ट इसको जेपेग में कन्वर्ट किए और इसको हमने सेव किया, सेव एज। अभी यहाँ दोनों इमेज को हम खोलेंगे।
ये वाला है +2 कंपनसेशन, ये वाला है -2 कंपनसेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम ले रहे हैं इसका आई ड्रॉप टूल से, इसको कलर को चेक कर रहे हैं कि उसका वैल्यू क्या आ रहा है। हमने यहाँ पे ब्लैक पर मारा, ये -2 कंपनसेशन है, ये ब्लैक फोरग्राउंड हुआ, देखो क्या वैल्यू आया। दिस इज नॉट ऑलमोस्ट ऑल जीरो, यानी कि हमको ब्लैक को ब्लैक पे लाने के लिए कंपनसेशन को माइनस करना पड़ेगा। गॉट इट? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ मतलब वो जो आपने किया उसको फिर मॉडिफाई करना पड़ा थोड़ा। हाँ, तो ब्लैक पे हमने देखो, जो माइनस कंपनसेशन करने से क्या होगा कि जो कलर है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। हाँ तो जहाँ पे डार्क कलर है या डार्क ये फोरग्राउंड है, वहाँ पे हमको कंपनसेशन माइनस करना पड़ेगा। और जहाँ पे वाइट है, जैसे स्नो है, स्नो के फोटोग्राफी में कंपनसेशन प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट ये ब्लैक है। अब इसका हम जीरो को चेक करेंगे। सेम आई ड्रॉप पर से हमने जीरो को चेक किया, वाइट को। अब ये देखिए वाइट का वैल्यू क्या आया, 249 के आसपास आया, मतलब कि ऑलमोस्ट 255। तो ये एक्चुअल वाइट है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? हाँ Clear सर, हुआ? ये जो आपने किया सर, हाँ ये कैमरा में माने जब तक हमारा माने उस टाइम में जब तक हमारा ये काम चलता रहेगा तब तक ये स्टेबल रहेगा, ये सेटअप। हाँ, ये चेंज नहीं होगा। अच्छा। एक बार आपने एक्सपोजर कंपनसेशन चेंज कर दिया कैमरे में, हाँ हाँ तो हाँ। वही रहेगा जब तक कि दोबारा उसको चेंज नहीं करेंगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आपको अभी कुछ डाउट है तो बोलिए, वरना फिर आगे कुछ और दिक करेंगे हम। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। आप तो जो सॉफ्टवेयर पे देखा है ना, उसको सॉफ्टवेयर तो खूब ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है सर। कैमरा का कैमरा का बात में वो सॉफ्टवेयर खूब यूजफुल। कैन आई डाउनलोड सर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मोबाइल में काम नहीं करेगा, ये लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही काम करेगा, ठीक सर है। ये इसके सर यूरल है, ठिकाना जो है ना, एड्रेस कहाँ से यूआरएल एड्रेस कहाँ से उसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना अरे पड़ेगा आपको हम व्हाट्सएप में दे देंगे लिंक, ठीक है सर? ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। लैपटॉप को भी तो सर कैमरा से कनेक्ट करना है ना, हाँ हाँ, केबल से कनेक्ट किए है ना, केबल से कनेक्ट करना है। केबल से कनेक्ट किए। यूएसबी केबल से। हाँ, अभी हम आपको ये तो दिखाया आपको ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे। सर अभी मेरा एक क्वेरी है। हाँ हाँ, सर हेलो। जब ग्रे कार्ड में एक्सपोजर ले लिया है, उसके बाद जब फोटो खींचेंगे तो एक्सपोजर सेम ही रहेगा क्या? मतलब फ्रेम तो एकदम चेंज सेम हो रहेगा, जाएगा? एक्सपोजर भी सेम रहेगा जब तक कि लाइट इंटेंसिटी सेम है, ठीक है ना। ओके। तो है ना, जब तक कि लाइट की इंटेंसिटी सेम रहेगी, एक्सपोजर सेम रहेगा, और जो ग्रे कार्ड में ली हो परफेक्ट होगा। अभी क्या है कि हम दे रहे हैं कंटिन्यूअस लाइट, ठीक है ना, तो इसीलिए लाइट की इंटेंसिटी सेम है। लाइट की इंटेंसिटी जहां चेंज होगी वहां ग्रे कार्ड का जो मेजरमेंट है वो सही नहीं रहेगा। अभी हम कुछ कलर्ड चीज रख के दिखा रहे हैं आपको। एक पर्सपेक्टिव इसका और भी है सर, जहां हम लोग एडिक्वेट टाइम है उसमें ये फोटोग्राफी हम लोग कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो हमेशा कर सकते हैं। अच्छा। बिकॉज क्या है, कहीं भी जाएंगे आप तो जो लाइट का इंटेंसिटी है एक एरिया में जहाँ फोटो खींच रहे हैं, वहां आने वाले आधा एक घंटा लाइट सेम रहता है। लाइट विल नेवर चेंज। हाँ, प्रैक्टिस हो जाने से तब ये आसान हो जाएगा। हाँ, तो हम तो वही कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आपको हम कुछ और दिखा रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर रख के, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कलर कितना पड़ता है। सर प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा। अभी और प्रयास कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हम लोग को हो रहा है ना,
फोटो वॉक का बात हो रहा है, उसमें सर समझाएंगे बढ़िया से। और एक फोटो वॉक का बात हो रही, हम लोग जो अभी हैं तो उसमें और बढ़िया से समझ में आएगा। फोटो वॉक के लिए पलामू आना पड़ेगा, बेतला नेशनल पार्क। जी आ जाएंगे सर। डेल्टा वेरिएंट क्या बोल रहा है देखिए पहले। सर को नहीं होगा, जहां फोटो खींचना छोड़ दिए वहीं अटैक करेगा। सही बात है। अभी हमने मुझे क्या तो- किया, अभी हमने वहां पे कलरफुल चीज रखा, ठीक है, और मेरा एक्सपोजर वही है, ठीक है, फ्रेम वही है। पहले यहाँ पे कंपनसेशन हम चेंज कर दें। स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन तो शेयर है, स्क्रीन दिख रहा है ना हमारा। हाँ हाँ सर। अभी हम कलरफुल सामान रख दिए सामने, अभी हम कंपनसेशन को फिर 0 कर रहे हैं। स्क्रीन में तो कलरफुल कुछ नहीं आ रहा है सर, ब्लैक एंड व्हाइट। अभी आएगा ना, अभी तो यहाँ अच्छा, सेटिंग कर की है अभी। ओ, अब अच्छा, हम अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक ठीक अब हम क्लिक करेंगे। ठीक ठीक। ये 0 कंपनसेशन है, ठीक है। अच्छा ये जो मेरा मास्क है एकदम रेड है, ये हाँ। रेड नहीं दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो हमने क्या कहा, कलर को सही करने के लिए कंपनसेशन को माइनस में करेंगे, ठीक है। जी अब सर। हम इसको माइनस में कर रहे हैं, अभी -2 ही कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, -2 हमने कर दिया, ठीक है, और हमने क्लिक किया। ये देखे लाल दिखा, हाँ, अभी सर कम लाल थोड़ा सा लाल है लेकिन अभी मैंने अब हम दिखा रहे हैं एक्चुअल मार्क्स, अभी हम दिखा रहे हैं एक्चुअल मार्क्स जो हमने वहां रखा है। इज इट विजिबल? Yes, हाँ 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 हाँ। मैचिंग है ऑलमोस्ट। लगभग सर बराबर लगा। कारण क्या है कि यहाँ पे एलईडी लाइट है, हम जहाँ दिखा रहे हैं कैमरे के पास में, ओ अच्छा। वहां पे लाइट दूसरा है, ओ बट अच्छा। नाउ द कलर हैज कम द सेम अच्छा माइनस करने पे, ठीक है। अच्छा। और येलो भी कलर है, येलो आ गया है। अब हम वहां पे व्हाइट रख रहे हैं कुछ, ठीक है साहब। अभी हमने व्हाइट रखा, कंपनसेशन को फिर हम 0 कर दिए, 0 किए, हमने क्लिक किया फोटो। ये व्हाइट इज नॉट व्हाइट, ठीक है। अब हम कंपनसेशन को प्लस कर रहे हैं, +2 किया हमने, क्लिक किया। अब दिखा व्हाइट इज व्हाइट। सारे व्हाइट दिख गए सर। नहीं वो तो होगा, लेकिन मेन यहाँ पे व्हाइट है, ठीक है। अब उसी व्हाइट को देखो आप कैमरे के साथ, हाँ सर ये वॉइस थोड़ा सा लगा। ठीक है। तो ये क्या है कि आपको तो पहले मेन सब्जेक्ट को सही करना है। अगर मान लो स्नो का फोटो खींच रहे हो आप, तो कंपनसेशन को प्लस कर दो आप, +1 +2 डिपेंडिंग अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द स्नो।
जी अगर सर। स्नो बहुत डार्क है तो +3 भी जाना पड़ेगा, +4 भी जाना पड़ेगा। तो ये दिस विल कम आफ्टर एक्सपीरियंस। जी गॉट सर। इट? क्लियर हो गया? फारूक जी क्लियर हुआ? सर फारूक जी? सर फिर भी एक बताइए ना सर, हाँ मुझे फिर भी एक फिर भी बताइए सर, क्या? जो आप व्हाइट जो है ना, व्हाइट को जो बोलिए आप। हाँ बोले व्हाइट ना। স্যার আমি একবার ট্রাই করব। सुदीप वहां से करो, करो आप। सर हमारे मैं पास एक है बार ठीक है। उनको बोलने को ट्राई करूँ, बंगाली में ट्राई करता हूँ सर, ठीक है? हाँ बंगाली में ट्राई करो। शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा उनको। हाँ हाँ ঠিক আছে দাদা, বলছি স্যার যেটা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে, দেখুন আপনি প্রথমে প্রথমে অ্যাপারচার প্রায়োরিটি মোডে নিলেন ক্যামেরাটা, ঠিক আছে? আপনার সেটিংস অ্যাপারচার প্রায়োরিটি মোড, সেখানে একদম আপনি পয়েন্টে আসলেন, ঠিক আছে? এটা আমাদের সেন্টার অ্যাভারেজ হয়, ম্যাট্রিক্স হয়, ওটা নয়, ঠিক আছে? একদম পয়েন্টে আসলেন, সেখানে আপনি একটা জায়গায় পয়েন্ট করলেন, ঠিক আছে? পয়েন্ট করে আপনার সব মেজারমেন্টটা নিলেন, সেই জায়গায় মেজারমেন্টটা নিল, ঠিক আছে? কি নিল স্যার? আপনার অ্যাপারচার প্রায়োরিটি নেওয়া হলো, শাটার স্পিড নেওয়া হলো, ঠিক আছে? আইএসও দেখা হলো, আপনি এটা রিডিং পেয়ে গেলেন ক্যামেরায়, ফাইন। এবার আপনি এটাকে ম্যানুয়াল মোডে শিফট করে গেলেন, ঠিক আছে? ক্যামেরার সেটিংস বলছি, ম্যানুয়ালে শিফট করে গেলেন আপনি, ঠিক আছে? এবার যদি ম্যানুয়ালে শিফট করে যান, তাহলে আপনার কিন্তু সেখানে মানে আপনার এক্সপোজার কম্পেনসেশনটা কিন্তু কাজ করবে না আপনার, ঠিক আছে? প্লাস মাইনাস কাজ করবে না, ঠিক আছে? আপনাকে যদি প্লাস মাইনাস করতে হয়, আপনাকে এগেইন আপনাকে অ্যাপারচার প্রায়োরিটি ফিরে আসতে হবে। আপনি অ্যাপারচার প্রায়োরিটিতে আবার শিফট করে আসলেন, ফাইন। এই অবধি ঠিক আছে তো স্যার? ঠিক বলছি তো? মানে স্যার সেই বললাম স্যার? তো আমি বুঝতে পারি। হ্যাঁ স্যার। তো এবার কি করতে হবে দেখুন, এবারে আপনার দুটো জিনিস দেখতে হবে। একটা হচ্ছে আপনি যে মেন সাবজেক্ট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মেন সাবজেক্ট আপনার কি আছে? আপনার মেন সাবজেক্ট কি হোয়াইটিশ নাকি আপনার কালার্ড? যদি সেটা হোয়াইট পার্ট হয় তাহলে আপনাকে কম্পেনসেশনটা প্লাস করতে হবে, ঠিক আছে? আমি আরেকটা জিনিস বলছি, সেটা হচ্ছে আপনি যদি শাটার স্পিড এবং আপনার অ্যাপারচার কম বেশি করেন তাহলেও লাইট কম বেশি ঢুকবে, কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে এক্সপোজার কম্পেনসেশন নয়, ঠিক আছে? আপনার ওই ভ্যালুটাকে সেম রেখে আপনার এক্সপোজার কম্পেনসেশনটাকে আপনি যদি পজিটিভের দিকে নিয়ে যান, টুয়ার্ডস পজিটিভ, তাহলে আপনার হোয়াইটের আরো কাছে যাবে, মানে হোয়াইটটা আরো প্রমিনেন্ট হবে। আপনি যদি কোনো কালার্ড সাবজেক্টকে মানে তুলতে চান মেন সাবজেক্ট হিসেবে, আপনি যদি এক্সপোজার কম্পেনসেশন নেগেটিভ করেন তাহলে কালারটা আরো কালার হবে। দ্যাটস ইট স্যার, ঠিক আছে? ঠিক আছে क्लियर हो गया एकदम परफेक्ट परफेक्ट ठीक हो गया फारूक जी? जी सर ठीक है। देखिए क्या है कि अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे रखते हैं क्योंकि अभी 8:20 हो गया है। फिर भी किसी को कोई डाउट होगा इसके बारे में, आप लोग प्रैक्टिस करें क्योंकि आपको हम असाइनमेंट देंगे इस पे, ठीक है ना? तो अगर रिक्वायर्ड होगा, एक मिनट, अगर रिक्वायर्ड होगा तो वी कैन गो फॉर एक्स्ट्रा क्लास, डोंट वरी, ठीक है? हाँ सर बोलिए। एक छोटा सा ये था, अभी जो जैसे मिररलेस कैमरा में हम लाइव व्यू मिलता है, हाँ हाँ तो जो उसमें तो हमको दिखाई देता है कि मान लीजिए कोई स्नो हम ले रहे हैं या कोई कलर्ड सब्सटेंस का ले रहे हैं, तो उसमें तो हम डायरेक्ट जो ऑटो मोड में व्हाइट बैलेंस को रख के हम डायरेक्ट एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन से उसको एडजस्ट कर सकते हैं सर? एपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी में, नॉट इन हाँ, एपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी। यस यस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो अभी अगला हम लोग आएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग पे, ठीक है? तो अभी हम आपको एक ही दिखा पाएंगे पोर्ट्रेट का, हाउ टू पोस्ट प्रोसेस। फॉर पोर्ट्रेट में मेन क्या है कि स्किन को स्मूथ करना है। उसके 3 मेथड्स है मेनली जो हम यूज करते हैं। पहला है फोटोशॉप में सरफेस ब्लर का यूज करना, वो हम करके दिखाएंगे। दूसरा है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, जो सरफेस ब्लर वाले ऑप्शन से फार बेटर है। तीसरा है इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर, जो कि प्लग इन है। तो अब क्या है कि बिगिनर्स के लिए सरफेस ब्लर इज द मोस्ट इजी। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन इज वेरी गुड, बट आई डू नॉट रिकमेंड। हमने यूज़ किया पहले, अब हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जब से मेरे पास में एक प्लगइन आ गया इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर, उसके बाद से हम ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से यूज़ करना छोड़ दिए। हम आपको सरफेस ब्लर का यूज़ करके और इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर यूज़ करके पोर्ट्रेट का एडिटिंग दिखाएंगे।
तो कैन वी हैव ए ब्रेक फॉर 5 मिनट्स? यस सर। यस सर। इसके अलावा ये भी जान लीजिए टेस्टेड प्लगइन फोटोशॉप प्लगइन्स, ये सर हम ये जो आपको इमेजनोमिक पोर्ट्रेचर है तो अलग से प्लगइन परचेज करना पड़ता है ना सर? हम बता देंगे आपको, फ्लक्चर भी होगा, आपको क्रैक भी मिल जाएगा, वो तो करना अच्छा। पड़ेगा। अच्छा अच्छा। दूसरा जो प्लगइन है जो सब में काम आएगा, चाहे पोर्ट्रेचर हो, चाहे लैंडस्केप हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे माइक्रो हो, दैट इज निक। ये हम वही चीज दिखा रहे हैं कि जो हमने यूज किया है, जिसके बारे में हम 100% श्योर है, ठीक है ना। निक इज ए वेरी गुड प्लगइन। निक में एक है विवेजा, जिससे कि डिटेल बाहर निकाल सकते हैं। टोपाज इज वंडरफुल फॉर डीनॉइज, अगर कोई को डीनॉइज करना है तो उसके लिए टोपाज बहुत बढ़िया है। इसके अलावा टोपाज में बहुत सारे वैरायटी हैं, टेक्सचर चेंज करने का वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। एनीवे, इमेजनॉमिक फॉर पोर्ट्रेचर, स्किन शॉर्ट करने के लिए। एक है पोर्ट्रेट प्रो, ये प्लगइन भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी है। पोर्ट्रेट प्रो में क्या है कि नॉट ओनली स्किन स्मूथनिंग, यू कैन चेंज द शेप ऑफ आई, you can change the waist size, you can change the hip size, you can change everything. Okay. ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर, प्लगइन एंड इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट की जैसे सॉफ्टवेयर आपका फोटोशॉप है, वो अच्छा, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। अच्छा अच्छा। प्लगइन मतलब कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर में काम करेगा। अच्छा, जिसको फोटोशॉप के साथ हम ऐड कर दिए। हाँ हाँ, अभी हम करके दिखाएंगे आपको। तो कैन वी हैव ए 5 मिनट्स ब्रेक? मेरा गला बज रहा है। श्योर 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 सर, है ना, तो लेट्स हैव ए 5 मिनट्स ब्रेक। 8:23 हो रहा है, 8:30 विल स्टार्ट। ओके। यस यस। हेलो। नहीं, आपको नहीं बोल रहे, हम ट्रेनीज लोग से बोल रहे हैं। जी बोलिए सर। नहीं, कोई भी ट्रेनी हमको थोड़ा सा इतना बता दीजिए कि जो पहले जब हम लोग एपर्चर प्रायोरिटी मोड में ले रहे थे, उस समय फोकस मोड क्या ऑटो फोकस रहेगा कि मैनुअल फोकस रहेगा? ऑटो फोकस रहेगा सर। हेलो, मृदुल बाबू बोल रहे हैं? नहीं, ज्योतिर्मय बोल रहा हूँ सर। ज्योतिर्मय बाबू, सुकांतो बोल रहे हैं? हाँ सर। सर अरे सर मत बोलिए सर, यहाँ एक ही आदमी है। नहीं, भैया नहीं। बोलिए, यही काफी है। जी जी। अच्छा, जतिन बाबू ये बताइए, जब हम लोग फोकस ग्रे कार्ड में फोकस कर रहे थे जी सर, एपर्चर प्रायोरिटी में, अरे ज्योतिर्मय यार, तो उस समय अपना फोकसिंग मोड जो है वो मैनुअल रहेगा या ऑटो फोकस रहेगा? ये तो मैनुअल किया था सर ने शायद। वही तो हम, शायद में तो हम भी हैं। सुदीप सर। हेलो सुदीप सर, सुदीप बाबू, एनीबॉडी? मृदुल, सैकत, सब भाग गया। मैनुअल फोकस किया था बोलिए सर। बोलिए बोलिए। कौन बोल रहे हैं? सुदीप सर, सुदीप बाबू? हाँ बोलिए। अच्छा सुदीप बाबू, हाँ। सुकांतो बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। बोल रहे हैं जब हम लोग एपर्चर प्रायोरिटी में ग्रे कार्ड में अपना फोकस ठीक कर रहे थे, उस समय फोकस मोड ऑटो फोकस है कि मैनुअल फोकस रहेगा? नहीं স্যার, আপনি বাংলায় বলছি, ঠিক আছে? স্যার প্রথম যেটা বলুন, করেছিলেন, হ্যাঁ স্যার প্রথমে যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে অ্যাপারচার প্রায়োরিটি মোডে নিয়ে গিয়ে ফোকাসটাকে প্রথম অটো করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ। অটো করলেন, তো অটো করে ফোকাসটা ধরে নিল ক্যামেরা, ঠিক আছে? এইবার আপনি ফোকাসটাকে ম্যানুয়াল করতে পারেন। ও তো ফোকাস ধরে নিয়েছে একবার, ঠিক আছে? এইবার স্যার আপনাকে ব্যাপারটা কি হয়, আপনার ফোকাসটা কেসটা কি, ধরুন আপনার কন্ট্রাস্ট যেখানে আছে ফোকাস তো সেখানে হয়, হ্যাঁ কন্ট্রাস্টে ফোকাস হয়। তো এবার ফোকাস ধরে নিলে একবার, এবার আপনি যদি ওকে আপনি শার্পনেসটা বুঝতে পারছেন, ওই শার্পনেসটাই হবে। আপনি এবার আপনি ম্যানুয়াল করলে কোনো সমস্যা হবে না স্যার, সেটাই প্রয়োজন পড়ে, ঠিক আছে? কারণ ম্যানুয়াল আপনার দেখুন, যদি ম্যানুয়াল মোডে কখনো ছবি তোলা হয় না, ম্যানুয়াল মোডের প্রবলেম হচ্ছে ওটাই, সেখানে হচ্ছে এইগুলো কাজ করে না, মানে আপনার মিটারিং মোড কাজ করে না। না, ম্যানুয়াল মোডের কথা আমি বলছি না, আমি ফোকাসটা। হ্যাঁ ফোকাসটা বলছি তো। প্রথমে আগে অটো করে ফোকাস নিয়ে নিল জায়গাটা, যেখানে লেখাটা স্যারের ছিল, ঠিক আছে? তারপরে স্যার কিন্তু ম্যানুয়াল, মানে তখন তো বোঝা যাচ্ছে না যে
হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার ফোকাস ওইরকম শার্পনেস কিংবা ওরকম আছে, তারপরে স্যার ওটাকে অটো ম্যানুয়াল করে নিয়েছিলাম আর কি, মানে মোডটা Focus চেঞ্জ না, কিন্তু মোড না, কিন্তু শুধু ফোকাসটা ম্যানুয়াল স্যার করে নিয়েছি। স্যার বললেন না হ্যাঁ যে সেই আমি বলছি কিন্তু ম্যানুয়াল ফোকাস হ্যাঁ করেছে না, তারপরে স্যার পরে ম্যানুয়াল ফোকাস। হ্যাঁ ঠিক 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 আছে, এটাই তাহলে কি কনফিউজ বলুন তো হচ্ছে। কি হবে কেসটা, ও সবসময় চেষ্টা করবে যদি অটো ফোকাস হয়, ও কন্ট্রাস্টে আবার ফোকাস করার চেষ্টা করবে। আপনি যদি তিনটে সাবজেক্ট রাখেন, ও কিন্তু কন্ট্রাস্টে আবার ফোকাস করবে, এই ফোকাস, তখন আপনার ফোকাসটা আবার ঘেটে যাবে। ওই জন্য ওই একবার করে নিয়ে তারপর ওটাকে ম্যানুয়াল করতে, নাহলে ও আবার ঘুরবে এদিক ওদিকে ফোকাসটা। আপনি কি দেখবেন নর্মাল ছবি তোলার সময়ও যদি যেখানে ও কন্ট্রাস্ট পায়, ফোকাসটা ঠিক সেই জায়গায় করার চেষ্টা করবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ঠিক। দাদা আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ বলুন, এই যে আমি, হ্যাঁ বলুন, আমি চেষ্টা করছি। হ্যালো, না না হ্যাঁ, বলুন বলুন। না, কি আছে? ম্যানুয়াল ফোকাস আমার প্রশ্ন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার মনে করেন আমি অ্যাপারচার বোর্ডে এক্সপোজারটা নিলাম, হ্যাঁ, যে ভ্যালুটা আসলো আমি এটা হ্যাঁ। ম্যানুয়াল মোডে সেট করলাম, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ হবে তো, স্যার সেটাই বললেন আপনি না আগে। না না মনে করেন যে আমি, না এটা তো মিটারিং মোডের কথা বলছে, তাই না? আমি মিটার আমি ভ্যালুর কথাই বলছি। না না এটা হোয়াইট, না 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 দাদা আমি বলি, হ্যাঁ। স্যার যেটা বলছে সেটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট ব্যালেন্সের কথা, তাই না? আমি হোয়াইট ব্যালেন্সের কথা বলছি না। না না আমি হোয়াইট বলছি ব্যালেন্স যে- না, স্যার ভ্যালুর কথাও বলেছে, আমি বলছি আপনাকে। না 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 জি, আমার প্রশ্নটা শুনেন। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি অ্যাপারচার মোডে একটা ক্লিক করলাম, হ্যাঁ, যে ভ্যালুটা আসলো সেই ভ্যালুটা আমি নিয়ে লিখে আমি রাখলেন? এটা ম্যানুয়াল মোডে কনভার্ট করলাম, লিখে রাখলাম, ম্যানুয়াল মোডে সেট করলাম, সেট করার একদম। পরে আমি ছবি তুললাম, তাইলে কি এটা ঠিক থাকবে? ছবিটা একদম ছবিটা থাকবে, ঠিক কেন হবে? থাকবে না? হ্যাঁ, আপনার অ্যাকচুয়ালি কি হবে, আপনার ম্যানুয়াল মোডে কি করা যায়, ম্যানুয়াল মোডে আমরা তিনটেকে কন্ট্রোল করতে পারি, ঠিক আছে? আর আমরা অ্যাপারচারের শাটারে কি হয়, আমরা অ্যাপারচারটাকে অ্যাপারচার মোডে কন্ট্রোল করি, বাকিটা ভ্যারি করে, মানে আইএসওটা আমি ফিক্স করে দিলাম, আইএসও ভ্যারি করানো যায়, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু, কিন্তু আইএসও ফিক্স করলাম, তাহলে আমার ভ্যারি করবে কি, আমার ভ্যারি করবে শাটারটা। ম্যানুয়ালে কি, যখন আমি চলে যাচ্ছি আমার তো ভ্যালুগুলো সব সেট করা আছে, তাহলে আমি ওই ভ্যালুগুলোই আমি সেট করব ম্যানুয়াল মোডে করে ক্লিকটা করব, তাহলে কি হবে, আমি অ্যাপারচার মোডে যেই রকম আমি এক্সপোজারটা পেয়েছি এক্সাক্ট এক্সপোজার আমি মানে আপনার ম্যানুয়াল মোডে পাবো। দ্যাটস ইট, মানে আমার ম্যানুয়ালটা ভ্যারি করে করে তো ওই জায়গাটা স্টেবল হয়েছে, মানে ম্যানুয়াল আমার যদি অ্যাপারচার প্রায়োরিটা যখন আমি ছবিটা তুলছি তখন ভ্যারি করে তো একটা ভ্যালু আমি পেয়েছি, ওটা হচ্ছে আমার মানে রেফারেন্স ভ্যালু। এবার সেই রেফারেন্স ভ্যালুটা আমি সেট করছি যখন আমি ম্যানুয়াল মোডে শুট করছি, করলে তার মানে ছবিটা সেম হবে। ঠিক আছে দাদা? থ্যাংক ইউ দাদা। সুকান্ত দা শুনছেন? হ্যাঁ বলুন বলুন, শুনছি। আপনি তো ট্রেন নিয়ে এই স্টেট থেকে ওই স্টেটে যান, তাই না? হ্যাঁ যাই। সাথে কি ক্যামেরা নিয়ে যান? না না অত দামি জিনিস। কেন? তখন তো আরো ছবি তোলার খুব ভালো সুযোগ হয়। ओके आई एम बैक। पहले स्क्रीन शेयर बंद कर दें। तो कांतो क्लियर हुआ सबसे बात करके? जी सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? সুকান্ত দা ব্লক হয়ে গেছে মনে হয়, হ্যাং হয়ে গেছে সুকান্ত দা। फारूक दा क्या है कि देखिए, ग्रे कार्ड इज नॉट फॉर फोकसिंग, दिस इज फॉर मेजरिंग एक्सपोजर एंड करेक्ट व्हाइट बैलेंस। ग्रे कार्ड इज नॉट मींट फॉर एनी फोकसिंग मेथड। सुकांतो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन हम सुन रहे थे, ग्रे कार्ड फोकस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ग्रे कार्ड दो ही काम के लिए इस्तेमाल होता है, या तो एक्सपोजर वैल्यू लेने के लिए या करेक्ट व्हाइट बैलेंस लेने के लिए। ठीक है,
अभी जो हम अभी दिखाएंगे एक पोर्ट्रेट को एडिट करके, तो उसमें और आपको आगे क्लियर होगा। ठीक है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सभी आ गए? यस सर। सभी हाजिर हैं? यस सर, यस सर। यस सर। सर यस सर। चलिए, पहले हम दिखा रहे हैं पोर्ट्रेट का, टाइम मिलने से लैंडस्केप भी दिखा देंगे। तो हमने ये दो लिया, एक में ग्रे कार्ड मॉडल पकड़ी है और एक में ग्रे कार्ड नहीं पकड़ी है। दोनों को हम डाले फोटोशॉप में। ये ग्रे कार्ड पकड़ी है, इसमें ग्रे कार्ड नहीं पकड़ी है। ठीक है, हमको एडिट इसको करना है। यहां से हम लेंगे व्हाइट बैलेंस का रेफरेंस। कैसे लेंगे? ये जो व्हाइट बैलेंस का पिकर है, ड्रॉपर है, इसको क्लिक किया, इसको लाके जो ग्रे कार्ड है वहां पे क्लिक किया। क्लिक कर लिया। क्लिक करके पहले ही बता चुके हैं हम लोग, यहाँ पे जाके हमने कॉपी एडिट सेटिंग कॉपी sir. कर लिया। ठीक है, अब हमने दूसरे वाले को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने पेस्ट एडिट सेटिंग पेस्ट करते ही इसका व्हाइट बैलेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चूंकि डार्क आ रहा है तो इसमें हम इसमें एक्सपोजर बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा के इसको वापस लाएंगे। आ गया? यस सर। तो पहला काम क्या है कि हमारे उसमें एक था कुछ स्लाइड, हाँ, स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? हाँ यस सर। सर। हाँ, पहला प्रोसेस क्या है कि इमेज को रॉ में प्रोसेस कीजिए। तो हमने रॉ में प्रोसेस कर लिया। ठीक है, नाउ पहला काम करना है क्रॉप और रोटेट द इमेज टू करेक्ट द कंपोजिशन। यस थर्ड स्टेप है सी योर इमेज फर्स्ट टू डिसाइड which parameters are required for editing, and this third point is the most important. सबसे पहले आपको अपने आंख से देखना है कि हमको इस फोटो के किस किस पार्ट में क्या क्या करना है, कहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाना है, कहाँ पे ब्राइटनेस कम करना है, कहाँ पे कलर को सेचुरेट करना है, कहाँ पे कलर को डिसेचुरेट करना है। तो ये जो तीसरा स्टेप है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज वेयर योर expertise will count. Okay, यस then सर। you adjust the brightness and contrast. Then you adjust the brightness and contrast. कैसे करेंगे बताएंगे हम। Then go for skin smoothing for portrait. Then dosing and burning. Dosing burning का मतलब क्या होता है कि dosing means कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्राइटनेस को बढ़ाना, बर्निंग मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्राइटनेस को कम करना। देन शार्पन एंड शार्पनिंग स्टेप शुड बी द लास्ट स्टेप। शार्पनिंग तभी करना है जब आपका इमेज पूरा तैयार हो गया, जब पूरा जलेबी बन के तैयार हो गया उसके बाद ही इसको शार्पन करना है। शार्पन करने के बाद में यू शुड नॉट गो फॉर एनी एक्शन लाइक क्रॉपिंग इमेज और इनलार्जिंग दिस इमेज, क्योंकि अगर आप इमेज को इनलार्ज करेंगे तो जो भी शार्पनिंग है वो भी इनलार्ज हो जाएगा, तो फोटो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब हम आ रहे हैं फोटोशॉप में। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, हमको इसको क्रॉप करना है। तो हमने क्रॉपिंग टूल लिया और इसको क्रॉप किया। ये नेचुरली ये पोर्ट्रेट के लेआउट में ही ये चलेगा। ठीक है, इसको हम प्रॉपरली ठीक है, क्रॉप हो गया।
अगर मान लिया ये आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो यू कैन मेक योर ओन क्रॉपिंग। वो कैसे, वो भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये इमेज था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर लेंगे और अपने हिसाब से क्रॉपिंग करेंगे जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लिया और चलो हम ये शेप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों बाँ हमको दिखे। ठीक है, और देन क्रॉप। दूसरा अब फ्रेम ये हुआ, फिर तीसरा फ्रेम दिखा रहे हैं आपको। दूसरा फ्रेम हुआ, तीसरा हम दिखा रहे हैं, दैट इज स्क्वायर शेप। यहां से ऊपर गया, हमने 1:1 का स्क्वायर लिया। ठीक है ना, एक ये भी इसका कंपोजिशन हो सकता है। ठीक है, तो एक ही फोटो को एक तरह से ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, तो आपको क्रॉपिंग करना है जैसा फोटो है उसके हिसाब से, और क्रॉपिंग करने के बाद में फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा एडिट करें, ये करें कि ये करें कि ये करें? मिडिल वाला। ये वाला। हाँ सर, हमें ये सही लगा। ठीक है, ओके, तो हम मिडिल वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले बाकी को हटा देंगे। अरे कुछ ना करो अभी इसको हम एज इट इज हुआ फॉलो ऐसे पूरा सेव कर ले रहे हैं ताकि बाद में हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है ना, पर ये इसका ताला नहीं खुला लेयर का। अभी रुको आप, अभी ताला नहीं खोलेंगे, अभी हम सेव कर रहे हैं। कहाँ सेव होगा? इसको अलग सेव कर लिए। हम कहीं आगे आएंगे, इसका नाम दे दिए हम को कर दिए ओरिजिनल, या बिफोर कर देते हैं, तब ना हम लोग बाद में कंपेयर कर पाएंगे। बिफोर आफ्टर, बिफोर कर दिया, बिफोर आफ्टर होगा। हाँ। अब इसको हम एडिट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद हमने क्या कहा था, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को करना। ठीक है, इमेज में गए, एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक है, अभी सबसे पहले ब्राइटनेस। ये ज्यादा कंट्रास्ट हो गया। ठीक है, ये बहुत कम कंट्रास्ट हो गया, तो कंट्रास्ट भी आपको अपने हिसाब से करना है। हो गया करीब करीब। ठीक है, ये पहले था, ये अभी हो गया। यस। परफेक्ट, ओके। इसके बाद हमने क्या कहा था, स्किन को स्मूथ करना है। ठीक है, तो हाँ, पहले हमने इसको एक बनाया लेयर, बैकग्राउंड लेयर, फिल्टर में गए, ब्लर में गए, एंड सरफेस ब्लर। याद रखना है सरफेस ब्लर। ठीक है, ये जो अमाउंट है रेडियस का, थ्रेशोल्ड का, रेडियस का करीब 15-16 के आसपास होना चाहिए, थ्रेशोल्ड का 10 से 12 होना चाहिए।
बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। आप जैसे मान लो कि रेडियस को हम बढ़ा दिए तो क्या हो गया, मेरा स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। ठीक है, तो टू स्टार्ट विथ कीप इट एट 16 और इसको 12, इसको बढ़ा दोगे आप, देखो ज़्यादा स्मूथ हो रहा है स्किन। ठीक है ना, इसको करीब 12 पे रख लिए। ठीक है, 14 पे है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी देखो आप स्क्रीन पे गौर करो, फर्क आ रहा है दिखने में? नहीं आ रहा है? तो आप बड़ा कर दें इसको, बड़ा अभी नहीं हो पाएगा। एनीवे आगे दिखा देंगे। हमने यहाँ से ओके किया, अभी इसको हम बड़ा इनलार्ज कर रहे हैं। ये हमने इनलार्ज किया, ये पहले था। ठीक है, यहाँ पे सब ब्लेमिशेज वगैरह सब दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है। अब ये सरफेस ब्लर करने के बाद हुआ, स्मूथ हो गया। यहाँ क्लियर है सबको? हाँ, अब यहाँ पे मास्किंग ब्रश लिया, यहाँ पे फोरग्राउंड में व्हाइट रहेगा, यहाँ से ब्रश लिया और ब्रश होना चाहिए एकदम सॉफ्ट, यानी कि इसको जीरो पे, जो हार्डनेस है इसको जीरो पे रखना है। ये हार्ड ब्रश हो गया, ये सॉफ्ट ब्रश हो गया, एकदम सॉफ्ट ब्रश लेना है। ले लिए, अब लेने के बाद में इसको कंट्रोल आई प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल आई करने से क्या हो गया कि जो पहले था वो ही आ गया। अब हम जहां जहां ब्रश घुमाएंगे वहां वहां पे सॉफ्ट होगा। देन यहाँ पे ओपेसिटी शुड बी 100%, फ्लो शुड बी 100%। ओके, ब्रश लिया, अब देखो अब क्या क्या फर्क आ रहा है। ब्रश का साइज जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उससे हम चेंज कर सकते हैं। अब नाउ यू सी द चेंजेस। सॉफ्ट करना है सिर्फ वहीं पे जहां पे स्किन हो, आई को नहीं करना है। एक और हम बताएंगे आपको, जो फीमेल पोर्ट्रेट में ये जो नाक के पास जो एक शेप बनता है ना, उसको सॉफ्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये फीमेल की ब्यूटी है, इसको हम सॉफ्ट नहीं करेंगे तो इसका शेप खराब नहीं होना चाहिए। लिप्स को सॉफ्ट नहीं करेंगे, आईज को नहीं करेंगे, आईब्रो को नहीं करेंगे। जो नेल पॉलिश है उसको सॉफ्ट नहीं करेंगे। स्किन को स्मूथ करने से जो छोटा मोटा ब्लेमिशेस है वो भी खत्म हो जा रहा है। यस।
अब क्या है कि काम करने में गलती भी हो जाती है, ठीक है। तो मान लो हमने गलती से जो इसका रिंग है उसको भी हमने सॉफ्ट कर दिया, रिंग सॉफ्ट हो गया। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, यहाँ जहाँ व्हाइट है यहाँ पे फोरग्राउंड में ब्लैक ले आओ आप, और फिर ब्रश घुमा दो, रिंग हमारा साफ हो गया। क्लियर? यस। क्लियर हुआ? मान लीजिए गलती से हमको ये नेल भी सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया, तो Yes, फिर sir. फोरग्राउंड में ब्लैक लाके फिर वहां पे कर देंगे, मेरा नेल साफ हो जाएगा। ठीक है। चित्र ये गायब हो गई। चला गया क्या नहीं? चलिए, मोटा मोटी सवेरिया हो गया। अब देखो आप, पहले ये था, अभी ये है, फर्क दिखा कि और बड़ा करें? पहले ये था, अभी ये है। ठीक है, बहुत फर्क हो गया सर। ठीक है। अब इसको हम लेयर को फ्लैटन कर लेंगे। फ्लैटन करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश है उसको लेके अभी जहाँ जहाँ कुछ ब्लेमिशेज या स्पॉट बच गया है उसको हटा देंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको इसको बड़ा करना पड़ेगा ताकि हमको दिखाई पड़े। बड़ा किया, यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश लिया, आप देखो एक यहाँ पे है, दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हटा दिया। एक यहाँ पे दिख रहा है, इसको हटा दिया। थोड़ा हमसे गलती हो गया था, नोज पे हमने नहीं किया है, ठीक है ना। हम दोबारा वापस जाते हैं, नहीं हम नहीं जा पाएंगे। हमने नोज पे सॉफ्टन छूट गया हमारा, स्मूथ करना, तो दोबारा लेके हम नोज को स्मूथ कर लिए। ठीक है, नहीं एक और जगह छूट गया है, अलग छूट गया है। अभी इलाज करने से पकड़ में आ रहा है कहाँ कहाँ हमने छोड़ दिया है। देखो यहाँ भी छूट गया, लिप्स के नीचे। बस इतना काफी है। हमने फ्लैटन किया, स्पॉट हीलिंग ब्रश लिया, और जहाँ जहाँ छूट गया है वहाँ पे हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश से उसको हील कर देंगे। अब 90% तो स्मूथिंग करने में ही खत्म हो जाता है। अब ये तिल है, अगर आपको रखना है रखें, या नहीं तो इसको हटा दें। तो हमने हटा दी। एक थोड़ा सा यहाँ हो गया, स्पॉट हीलिंग का काम हो गया। यस सर। अब दिखाते हैं कि ये हो गया, इसको हमने
फ्लैटन कर लिया। अभी क्या है कि अब डोजिंग बर्निंग करेंगे, ठीक है। डोजिंग बर्निंग करने का दो तरीका। डोजिंग क्यों करेंगे हम, हमको आंख जो है वो अभी चमकता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डोजिंग बर्निंग का दो तरीका है। पहला तरीका यहां से लिया हमने डोज टूल, ठीक है, ये लिया हमने, और ओपेसिटी ये जो है यहाँ पे 3 आएगा, शैडो, मिड टोन, हाइलाइट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, मिड टोन लेंगे, यहाँ पे 10% के आसपास रखेंगे और हल्का सा हटा घुमाएंगे। तो जो एक ब्लैकनेस था वो मिड टोन ब्लैकनेस हट गया, ठीक है। अब हम लेंगे हाइलाइट्स और फिर इसको घुमाएंगे। ठीक है, एक ये तरीका है। अब इसको वापस जा रहे हैं हम, दूसरा तरीका बता रहे हैं। इसके लिए हमको कॉपी करना चाहिए था, बैकग्राउंड कॉपी। डार्क हो गया। दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट ब्रश में जाओ, आप क्लिक कर्व, ये हाथ क्लिक करना है, क्लिक कर लिया, हमको ड्रॉपर मिल गया। ड्रॉपर मिल के अगर हमको डोज करना है तो हम ड्रॉपर को यहाँ क्लिक करके ऊपर खींचेंगे, अगर बर्न करना है तो नीचे खींचेंगे। तो हमको यहाँ पे डोज करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, तो हम ये इसको ऊपर ले जा रहे हैं। देखो आप, ब्राइट हो रहा आँख, क्लियर? हाँ, अगर डार्क करना है तो क्या आँख का साथ साथ स्किन भी तो ब्राइट हो गया होगा ना। अभी देखो तो अच्छा। खाली हम आँख पर ही, मेरा ध्यान खाली आँख पे है। अच्छा हम अभी काम सिर्फ आँख पे कर रहे हैं, हमको लिप से स्किन से मतलब नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। अब मान लो कि हमको इसको डार्क करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको नीचे खींचेंगे। अब देखो ये डार्क हो रहा है, और ये गड़बड़ हो गया, रुको आप, दोबारा हम दिखा दे रहे हैं। ये तो डोजिंग का देख लिया आप, अब बर्निंग का एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ से लिया हमने, मान लीजिए हमको डार्क करना है तो हम नीचे पुल करेंगे, डार्क हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बर्निंग, ठीक है। फिर हटा दिए हमने, फिर डोजिंग किया, हमको डोजिंग का ही काम है अभी। यहाँ से लिया, हमको आई को ठीक करना है, तो हम आई पे रख के इसको हल्का ऊपर पुश किए, आंख में चमक आ गई, ठीक है। जी सर। ये व्हाइट को क्लिक करके कंट्रोल आई किया, फोरग्राउंड में व्हाइट, यहाँ से ब्रश लिया और ब्रश लेके देखो अब मैजिक। ठीक है, आंख चमक गया। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं थोड़ा सा होठ को और चमकाए, तो क्या करेंगे, इतना करेंगे तो होठ खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पर कम करेंगे हम तो होठ एकदम खराब हो जाएगा, तो इसका ओपेसिटी कम कर देंगे। अभी मेरा ओपेसिटी मान लिया 100 है, तो इसको हम 50% कर दिए, करके थोड़ा लिस्ट पे भी बढ़ा दिए, तो थोड़ा लिस्ट मेरा ब्राइट हो गई। ठीक है, मान लिया हमको थोड़ा आईब्रो को भी ब्राइट करना है, तो यहाँ भी 50% पे थोड़ा घुमा दिए। तो ये हम इसलिए बोलते हैं कि ये आपको देखना है कि हमको अपने इमेज में कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, ये वाला कैसे आया था सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। इसको आईज में जो ब्राइटनेस बढ़ी है, जो वाइटनेस बढ़ा है, बर्निंग डोजिंग सर। हटा दिए हम, बर्निंग एडजस्टमेंट ब्रश में गए। ठीक है जी सर। ज्योतिर्मय क्लियर, यहाँ से कर्व लिया हमने, कर्व लेके ये जो हैंड है इसको हमने किया, एक ड्रॉपर मिला। अब हमको जहाँ पे ब्राइट डोजिंग करनी है, डोजिंग यानी कि ब्राइटनेस बढ़ाना है, वहां पे इसको रख के ऊपर खींचेंगे,
जी ड्रैग ऑन द अपर साइड। ठीक है, हो गया। अब ये व्हाइट सिलेक्ट रहेगा, यहाँ से कंट्रोल आई दबाया, यहाँ से ब्रश लिया और अभी हम 100% में करके इसको ठीक है। अब मान लो कि ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ से ओपेसिटी कम कर देंगे। देखो ये 0 हो गया, जी तो यहाँ से ओपेसिटी से ये बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा जी इसको कम कर देंगे। ये जाके करीबन 87% पे जाके क्लियर हुआ। ठीक है, जी जी। अब ठीक सर, हल्का सा लिफ्ट भी ब्राइट करना है तो कुछ नहीं करना है, ओपेसिटी को यहाँ से कम कर दिया 50%, थोड़ा सा लिस्ट पे घुमा दिया, थोड़ा लिस्ट ब्राइट हो गया, थोड़ा सा आईब्रो पे घुमा दिया, आईब्रो ब्राइट हो गया, बस हो गया। अब ये हमारा डोजिंग बर्निंग हो गया। आंखों का कलर सर ये नीला है कि किया गया है? नहीं, ये नीला है, इसमें होता है लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस होता है ना, तो वो मॉडल को बनाया गया ताकि ये ब्लू आंख है। हमने कहीं कुछ नहीं किया है, आपको रॉ फाइल्स हम शुरू किए हैं, है ना, हमने कहीं कुछ आंख में कुछ नहीं किया ब्राइटनेस के अलावा, एकदम रॉ फाइल से हमने स्टार्ट किए। बट देयर आर मेथड्स टू मेक इट ग्लो, है ना, वो अभी अपना सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, हो गया। अभी ऑलमोस्ट अपना पोर्ट्रेट क्लियर हो गया। अब एक और तरीका सिखा रहे, मान लो कि आपको इसमें लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए, तो एक और तरीका है, एडजस्टमेंट लेयर लेके गो टू इमेज, गो टू एडजस्टमेंट, देन शैडो हाइलाइट्स। यहाँ से देखो आप कुछ आप इमेज में कुछ कर सकते हो। तो ये आपका शैडो पार्ट है, ये हाईलाइट पार्ट है। तो मान लिया हमको शैडो को ज़्यादा करना है, तो इधर घुमा दिए, शैडो को कम चेंज करना है तो यहाँ कर दिए, हाइलाइट्स को यहाँ से एडजस्ट कर लिए, देख लो ना हो रहा है। तो जहाँ पे हमको सही लगे वहाँ पे रख लेंगे। यहाँ से जो इसका मिड टोन का कंट्रास्ट है वो हम चेंज करेंगे। देखो मिड टोन कितना खराब हो गया, धीरे 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 देख लिए। अब ये देखो कहाँ था, ये था, अब ये हो गया। डू यू फाइंड सम चेंज? यस सर। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दो। ठीक है, तो एक ये हुआ बढ़ाने का कंट्रास्ट तरीका। अब एक और तरीका है, ये देखो जो भी बता रहे हैं ये हर पोर्ट्रेट पे लागू होगा कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप पोर्ट्रेट कैसा खींचे हैं। अब क्या है कि हमको लग रहा है कि इसमें और थोड़ा ब्राइटनेस होना चाहिए, तो क्या करेंगे, गो टू इमेज, एडजस्टमेंट एंड मैच कलर। इसमें क्या होगा, जो रंग है वही ब्राइट होगा। माने ऐसा नहीं है कि लाल ब्राइट होगा और हरा ब्राइट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म इसमें एक ब्राइट होगा। देखो आप पर, देखो आप पर, देखे ये डार्क हो गया। तो यहाँ से भी आप इमेज को और इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये दो चीज सीख लिए आप। अब है कि फाइनल करने से पहले एक और तरीका है कि जिससे कि आप कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। अभी हम ऑलरेडी कंट्रास्ट बहुत बढ़ा दिए हैं, लेकिन तरीका सिखा दे रहे हैं। गो टू कर्व एडजस्टमेंट ब्रश में, एंड यहाँ जो प्रीसेट्स है उसको सिलेक्ट करो आप, और जो लीनियर कंट्रास्ट है उसको क्लिक करो आप, लीनियर कंट्रास्ट। अब नाउ यू सी देयर इज सम कंट्रास्ट, बट क्योंकि हम पहले ही से बढ़ा दिए हैं कंट्रास्ट, तो अब ये करने से हमारा स्किन खराब हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन ये भी एक तरीका है
कंट्रास्ट बढ़ाने का। ओके, जी गॉट इट। अब मान लिया कि Yes, sir. आपको लग रहा है कि यार आंख और चमकना चाहिए, तो उसके लिए फिर आप यहाँ से डोज टूल लेके, हाइलाइट्स लेके हल्का सा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है तो नहीं है। अब मान लीजिए कि कहीं पे लगा कि यार हमारा तो हम सॉफ्ट तो किए लेकिन कहीं कहीं छूट गया हमारा, तो क्या करें हम? अब तो हम इतना आगे बढ़ गए, है ना। अब जैसे यहाँ हमको लग रहा है कि थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ थोड़ा छूट गया है, तो आई विल गो टू ब्लर टूल, कीप इट ओपेसिटी 100%। अब देखो ये सॉफ्ट किया, दिखा सॉफ्टनेस। यस सर। यहाँ देखो ये नाक के पास में हमको लग रहा है कि और सॉफ्ट करना है। तो ये तरीका है, अगर कहीं पर छूट गया है हमको सॉफ्ट करने में, तो ये हम जैसे आप देखो कि यहाँ भी कहीं छूट गया है उंगली के पास में, तो यहाँ भी हम ये ब्लर टूल को रन कर देंगे। तो इमेज को बड़ा छोटा कैसे कर दे रहे हैं सर पर? इमेज को बड़ा छोटा, जो जेड है, जेड को प्रेस करेंगे तो यहाँ प्लस साइन आएगा, तो इमेज बड़ा होगा। अगर वहीं जेड के बाद में अल्टर दबाएंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस, तब ये छोटा होगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. क्लियर। अब ये सारा हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसका इंक्रीज करेंगे शार्पनेस। तो शार्पनेस इंक्रीज करने का तरीका कहाँ से है बता रहे हैं। इसको हमने एक बैकग्राउंड लेयर लिया, ये तो ब्लर है, इसी में एक शार्पन टूल यहाँ से लिया, ओपेसिटी थोड़ा कम रखा, स्ट्रेंथ को रखा मैक्सिमम 15-20%। तो हमको इसमें शार्पन क्या करना है, स्किन तो करना नहीं है, हमको बाल करना है। बाल को शार्पन कर दिया थोड़ा सा, आई को शार्पन कर दिया, आई ब्रो को कर दिया, थोड़ा लिप्स को कर दिया। तो एक ये तरीका है शार्पन करने का। दूसरा तरीका भी बता रहे हैं आपको हम, इसको हमने हटा दिया। और सेकेंड मेथड, गो टू फिल्टर, गो टू शार्पनेस, गो टू अनशार्प मास्क। ठीक है, अब यहाँ से अमाउंट को रखना है 50-70 के आसपास में, रेडियस को 2 रखना है, रेडियस 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आप अमाउंट को बढ़ा के शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। देखो फर्क मिला है। तो ये हम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए दिखाने के लिए, तो अपने हिसाब से बढ़ाना है, तो अपने हिसाब से ये थोड़ा ठीक है। ठीक है, गॉट इट। Yes, sir. चलो, तो एक ये भी तरीका है, ये 2 तरीका सिखा दिए, अब तीसरा सिखा रहे हैं। यहाँ से फिर आप बैकग्राउंड लेयर कॉपी करो, गो टू फिल्टर, गो टू अदर, गो टू हाई पास। अब हाई पास में देखो आप कितना रखना है वो देख लो, ये हम 0 कर दिए तो मेरा कहीं शार्पन नहीं हो रहा है। अब हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हल्का आंख दिख रहा है, ज्यादा कर देंगे तो ये ओवर शार्प हो गए। इतना नहीं करना है हमको, मेनली तो आंख और बाल को करना है ना, तो जहां पे हल्का आंख दिखे इतना, सॉरी नीचे आ गया, बस इतना प्रैक्टिस करने से आपको और हो जाएगा। ओके किया हमने, इसके बाद यहाँ पे गया, नॉर्मल की जगह पे कर दिया हमने सॉफ्ट लाइट। यही याद रखना है कि अब ये नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड में था, ब्लेंडिंग मोड को हम सॉफ्ट लाइट में कर देंगे। अब नाउ यू सी द मैजिक ऑफ शार्पनेस।
ओ ये पहले था, ये अभी है। देख लिए फर्क मिला? यस हाँ सर, हाँ? मिल रहा है। ठीक है। अब मान लो आपको लग रहा है कि यार हम तो शार्पन कर लिए, लेकिन हमको कहीं ज्यादा लग रहा है, तो कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करेंगे? ओपेसिटी कम करेंगे तो ओवरऑल कम होगा, ठीक है ना। कहीं लोकली करना है तो फिर मास्किंग ब्रश लिया, यहाँ से फोरग्राउंड में ब्लैक रहेगा, यहाँ से ब्रश लिया, यहाँ से ओपेसिटी जितना करना, मान लो कि हमने करना 50%। मान लो कि हमको लग रहा है कि यार आई ब्रो बहुत ज्यादा हो गया, तो आई ब्रो का ओपेस हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि यहाँ जो सर के पास बाल है ये भी ज्यादा साफ हो गया, तो इसको भी हम हल्का कम कर देंगे, ठीक है। नाउ यू सी द डिफरेंस। ओके, क्लियर? यस सर। व्हाइट बैलेंस से क्या फायदा हो गया? जो स्किन का टोन है वो आपको नहीं छेड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मृदुल, जो तुम बोल रहे थे व्हाइट और ब्लैक का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। जी सर। अभी हाँ, Yes. अभी हम फिर उसको भी दिखा रहे हैं इसमें। अब इसको हमने फ्लैटन किया, मेरा इमेज रेडी है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको लग रहा है कि यार थोड़ा सा इसमें व्हाइट बैलेंस की कुछ गड़बड़ी है, क्या करें? तो क्या करना है? टेक बैकग्राउंड लेयर कॉपी, गो टू फिल्टर, गो टू कैमरा रॉ, यहाँ से व्हाइट बैलेंस का पिक कर लिया, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये व्हाइट है ना, यानी कि इसका वैल्यू करीबन 250 250 250 होगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, कोई चेंज आया? नहीं आया ना, बिकॉज नहीं सर। ग्रे कार्ड से परफेक्टली किया हुआ है। अब हम मान लो इसकी जगह पे हमने यहाँ डार्क एरिया यहाँ क्लिक किया, क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, यस सर। है ना। फिर हमने व्हाइट पे क्लिक किया, हाँ। क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया? व्हाइट पे क्लिक किया, ठीक है। अब इसी चीज को हम चाहेंगे ब्लैक पे क्लिक करने का, तो हमने फिर यहाँ ब्लैक पे देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्लैक हमको परफेक्ट दे रहा है। तो ये करीब करीब 00 के आसपास है। यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो आप स्किन टोन में फर्क नहीं आ रहा। कारण क्या है कि ऑलरेडी हमारा ग्रे कार्ड से जो व्हाइट बैलेंस है परफेक्ट किया हुआ है, इसीलिए ब्लैक से भी कुछ चेंज नहीं आ रहा, व्हाइट से भी चेंज नहीं आ रहा। क्लियर? ओके, यस सर। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको सेव करने के बाद में नेवर नेवर क्रॉप इट और नेवर इनलार्ज इट, ठीक है ना। शार्पनिंग करने से पहले जो आपको करना है वो कर लेना है, इसके बाद नहीं करना है। अब इसको हमने सेव एज किया ताकि हम लोग वहां पे कंपेयर कर सकें। This is before and this is after. Before, after. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर हाँ? एक क्वेश्चन है आप पूछिए। सर। ये तो जेपेक में डॉज एंड बाइंडिंग करे ना, रॉ में कैसे करेंगे? रॉ में रॉ देखिए क्या है कि रॉ में बहुत ज्यादा काम आप नहीं कीजिए, है ना।
बेहतर रॉ में जितना सिखाए हैं उतना ही करना है, ज्यादा करने से आप संभाल नहीं पाओगे। रॉ में भी होता है लेकिन आप जेपेग में आके करो आप, है ना, ठीक है। क्योंकि जब तक हमने सेव एज नहीं किया ना, वो अभी जेपेग नहीं है, रॉ ही है। अभी हमने सेव एज नहीं किया है ना, जब सेव एज कर लिए तो जेपेग हो गया। जब तक हम सेव एज नहीं कर रहे हैं वो रॉ फॉर्म में ही है। गॉट माय पॉइंट? यस। क्लियर हुआ फारूक जी? पूरा चीज को ठीक है, दो सर। तीन बार देखना पड़ेगा, उसके बाद सर माने इट विल एक्सेप्टेड बाय द ग्रे मैटर, अदरवाइज बहुत कुछ चीज अभी ऊपर से निकल गया। नहीं तो इसीलिए तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ताकि हाँ आप हाँ सर, हाँ सर, उसको रिकॉर्डिंग को देखना नहीं पड़ेगा। आएगी, ठीक है। फिर आपको भी थोड़ा डिस्टर्ब भी करेंगे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये जो फारूक जी का फंडा और क्लियर कर दें, हाँ, हम दोबारा हम इसको हटा रहे हैं। ये हमारा ओरिजिनल है। अभी देखो ऊपर में ये तो फिर जेपेग आ रहा है। हमने एक यहाँ से फाइल लिया, ये रॉ फाइल लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमको करना है करके हमने इसको ओपन किया। फारूक जी ध्यान दीजिए, अभी भी ऊपर देखिए, दिस इज NEF रॉ फाइल है, यस, है ना। ठीक है सर। अभी भी ये रॉ फाइल है। जब तक कि हम सेव एज नहीं करते हैं ये रॉ फाइल रहेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे पूरा काम करने के बाद में देन सेव एज करना है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है सर। क्लियर? यस सर। चलिए, सर ये लेयर बना के जो काम करने के बाद लेयर को जो हटा रहे हैं सर, हाँ वो कहाँ पर डाल रहे हैं? नीचे में फ्लैटन करना है ना, जैसे देखिए। फ्लैटन तो मिला देना है ना सब लेयर को। हाँ हाँ, और नहीं, जो लेयर हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि हम इसको तो आपको दोबारा दिखा दे रहे हैं, चिंता मत कीजिए। हमने ये लिया, है ना, बस सर। हमने एक बैकग्राउंड लेयर लिया। देखिए इसके अलावा मल्टी लेयर में जितना हमने किया है हाँ हाँ सिर्फ डुअल लेयर में काम किया, ताकि मल्टी लेयर में सिखाएंगे आपको हाँ तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ हाँ। तो हमको ग्रेजुअली आगे बढ़ाना है ना। ना ठीक है, यही जो लेयर में जो आप काम किए, अब मान लिया ये किए ना, अब हम यहाँ से मान लिया कि गए एडजस्टमेंट में, ब्राइटनेस कंट्रास्ट हमने कुछ ब्राइटनेस बढ़ा दिया, हाँ, ठीक है। अब हमको इसको फ्लैटन करना पड़ेगा, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करना पड़ेगा। हाँ, गो टू लेयर हाँ। एंड देन फ्लैटन। फ्लैटन, वो तो तब दोनों लेयर मर्ज हो गया। मर्ज हो गया। नहीं, सेकंड लेयर जो आप एडजस्टमेंट किए उसको हमको हटा देना है, वो लेयर को हटा देना है। तो उसको कैसे हटाना हटाएंगे? नहीं है, हटाना क्या हुआ, अगर हटा देंगे तो क्या होगा, हटाना का मतलब कि इसको उठा के यहाँ से डिलीट किया, हटाना नहीं है। अच्छा, दोनों लेयर रहेगा, दोनों को मर्ज करना है। नहीं वो लेयर तो में जा- ठीक है, अगर काम किए तब, जैसे अभी आप हम लोग को समझाने के लिए 2-3 लेयर बनाए ना, फिर उसको हटा दिए, तो वो सब उसको कैसे कीजिएगा? अब जैसे मान लिया कि ये हमने फ्लैटन किया, हाँ हाँ, हमको फिर कुछ काम करना है, अच्छा फिर हमने एक लिया बैकग्राउंड लेयर, अच्छा, है ना। अब हम जो अगला काम करेंगे वो हम काम कर रहे हैं डोजिंग का। तो हमने यहाँ से लेके आंख को डोजिंग किया, हाँ सर, आंख को डोजिंग की, ठीक है। हाँ सर, फिर इसको फ्लैटन कर लिया, अच्छा, क्लियर। हाँ हाँ, हम 2 लेयर में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग 2 लेयर में काम करके पकड़ सकते हैं। हाँ हाँ, ये जितना हम किए हैं 6-7 स्टेप, इसके लिए 10-12 लेयर बनेगा। अच्छा, वो लेयर बनने के बाद में आप पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इससे एक फोटो भी एडिट नहीं हो पाएगा। हाँ सर, समझ तो गया। इसलिए एक काम के लिए एक बैकग्राउंड लेयर बना के काम करें, फिर उसको फ्लैटन करें, फिर करें। नहीं, मेरा कहना वो नहीं था, मेरा कहना नहीं, था, मैं मान मैं लीजिए मैं मैं थोड़ा इंटरप्ट करूं सर, मैं इंटरप्ट करता हूं थोड़ा, ठीक है। हाँ हाँ बोलो आप। एक्चुअली डॉक्टर जी, वो जो आपका जो लेयर है, आप जिस लेयर को रिमूव करना चाहते हैं उसको जस्ट ड्रैग करके, इधर देखिए डस्टबिन का साइन है एकदम राइट कॉर्नर में, ओ, देखिए अच्छा, डस्टबिन अच्छा, का, हाँ, वहां पर हाँ, डालने से ही वो डिलीट हो जाता है आपका। ये क्वेश्चन अच्छा रहता अच्छा, है। ये राइट साइड में डस्टबिन का साइन है ना, ये है ना, सर। ये देखिए, हाँ, तो इसको ड्रैग किया और यहाँ पे डाल दिया, डिलीट। यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, वही हम बोल रहे हैं। मान लीजिए एक लेयर बना के हम काम करने के बाद आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो उसको हमको हटा देना है उस लेयर को, तब जाके उसमें ड्रैग कर देंगे।
और उसको दोनों को मिलाने Yes, के लिए yes, 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 हाँ yes. I दोनों got को it. मिलाने के लिए फ्लैटन कर देंगे, ठीक Yes, yes. है ना? अब जैसे ठीक, ये है, लेयर में जाके हमने फ्लैटन कुछ काम किया, हमको पसंद नहीं है, हाँ तो हाँ यहाँ से पकड़ा, आ गए, डस्टबिन में डाल दिया। हाँ समझ गए क्लियर? ठीक 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 अगर सेटिस्फाइड है तो उसको फ्लैटन कर लेंगे ना सर। हाँ हाँ फिर दूसरा लेयर में जाके काम करेंगे, ठीक है डन? ठीक है सर डन। तो आज का इतना ही। आज बहुत हो गया सर, इतना बहुत अब हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया बताने के चक्कर में। ना ठीक है सर। डॉक्टर साहब का लैंग्वेज में छोटा कैप्सूल में बहुत सारा विटामिन। तो अब असाइनमेंट की बारी है। हाँ, असाइनमेंट लिखिए आप लोग। ग्रे कार्ड तो किसी के पास नहीं है, किसके किसके पास है? सुदीप के हम पास ऑर्डर है। कर दिया सर ग्रे कार्ड। मेरा पास है सर। आपके पास है, वेरी गुड। जिसके पास ग्रे कार्ड नहीं है, आपको स्टेशनरी शॉप में एक प्लास्टिक का फाइल मिलता है। अच्छा जिसका जो लास्ट वाला जो दो फोल्ड होता है, तो बॉटम फोल्ड है वो ग्रे कलर का मोस्टली होता है, ठीक है ना? तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ग्रे चीज करके यूज करना पड़ेगा, तभी तो प्रैक्टिस होगा, ना ठीक है ना? एकदम। जैसे कुछ नहीं मिलेगा तो घर में कोई ऐसा ग्रे कलर का कोई चीज हो, कि हम हटा दे रहे हैं, घर में कोई ऐसा डार्क ग्रे कलर का कपड़ा हो, कुछ भी हो, उसको भी लेके कहीं ये एक बार प्रैक्टिस करना है। एग्जैक्टली वो जो ग्रे कार्ड का इफेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा आपको ग्रे कार्ड का। और क्या करें हम? ग्रे शीट किया था। भी हमको नहीं मिल रहा है, आप जाएंगे स्टेशनरी शॉप में, तो जो फोल्डर होता है प्लास्टिक का वो उससे लीजिए और देखिए कि किस फोल्डर में जो नीचे वाला पार्ट है वो ग्रे है, ठीक है ना? अब उस शीट में जो ब्राइट है, ग्लेज हो, जिसमें ग्लेज ज्यादा है, उसका यूज नहीं करना है। जो मैटी फिनिश का है साइड, उसका यूज करना है, ठीक है? तो पहला असाइनमेंट कि ग्रे कार्ड यूज करके एक्सपोजर सेट करके 2 फोटो। दूसरा, ग्रे कार्ड यूज करके व्हाइट बैलेंस ठीक करके 2 फोटो, दोनों में बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? तीसरा है 2 पोर्ट्रेट को पोस्ट प्रोसेस करना, दोनों में बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि 6 बनेगा इमेज और 12 फोटो आपको दिखाना है। क्लियर हुआ? इस बार क्या है कि आप लोग अपना स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस बार जो हम ईमेल देंगे CBA वाला, उस ईमेल पे आप फोटो भेज दीजिएगा। फोटो भेजना है 1200 बाई 1800 पिक्सल मैक्सिमम, ठीक है? या एक और इजी कर दें आपको, 1920 मैक्सिमम लॉन्गर साइट। क्लियर हुआ? असाइनमेंट को रिपीट कर दीजिए सर। हम व्हाट्सएप पे लिख के दे देंगे, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है ना? ठीक। और 1920 इसीलिए बोले आपको कि मोस्टली इससे आपको एक सैलून में पार्टिसिपेशन का एक आइडिया हो जाएगा कि सैलून में मोस्टली 1920 लॉन्गर साइड मैक्सिमम मांगता है, या मांगता है 1920 मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, 1080 मैक्सिमम वर्टिकल, ठीक है? तो इस तरह से आपको मिलेगा आइडिया। 1920 पिक्सल है सर? पिक्सल। DPI कोई भी हो, 300 हो, 72 हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1920 पिक्सल मैक्सिमम एट लॉन्गर साइड। अगर मान लिया कि आपका पोर्ट्रेट साइड है तो जो वर्टिकल है ये 1920 होगा, अगर लैंडस्केप है तो जो उसका विड्थ है वो 1920 होगा।
सर वहीं फोटोशॉप में जाके उसमें साइज से उसको कर लेंगे। अभी किए ना साइज हम। जी सर। अच्छा सर, पीपीआई कहीं डीपीआई लिखा होता है, वो कहीं पे पीपीआई भी लिखा है सर? अभी आपको हम कर रहे हैं। पीपीआई सर क्या? अभी 1 मिनट ठहर जाओ यार, हम पहले हमको स्क्रीन शेयर करने दो। Let us see it on Photoshop. यस। मान लिया ये इमेज आपको भेजना है, ठीक है ना? यस सर। गो टू इमेज, इमेज साइज। अब आपको यहाँ मिला रिजोल्यूशन, है ना? तो पहले पिक्सल पर इंच, तो 300 भी रहे या कोई रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 300 रख के यहाँ पे जो इंच है इसको हम जाएंगे पिक्सल्स में, जी। और पिक्सल्स में हमने क्या कहा कि लॉन्गर साइड 1920, तो ये हाइट लॉन्गर साइड है, इसको हम 1920 कर देंगे। ओके, डन। अभी हो गया। अब इसको अगर हम सेव करेंगे तो इसका फाइल छोटा हो जाएगा, तो आपको भेजने में आसानी होगी और हमको डाउनलोड करने में आसानी होगा, क्योंकि इतना बड़ा फाइल चाहिए नहीं। अब दिखा रहे कितना फर्क पड़ गया। सर रिजोल्यूशन कम हो जाता सर क्या? कम होगा ना रिजोल्यूशन। अब देखो फर्क क्या है, ये है पहले का 7 MB, ठीक है, दूसरा वाला कितना हो गया 1.3 MB हो गया, ठीक है। अभी एक और चीज सिखा दे रहे हैं, जैसे मान लो ये किया, अरे सर हो गया, एक और चीज सिखा दे रहे हैं आपको। कई बार सैलून में प्रॉब्लम आती है, सैलून में कहता है कि इट शुड नॉट बी मोर देन, मान लो कि 1 MB, ठीक है। अब हमने इसको मान लिया क्रॉप किया, इमेज साइज चेंज किया इसका, हमने यहाँ पे 1920 कर दिया, ओके किया। अब हम जा रहे हैं करने सेव एज। इसको लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो आप क्या आ रहा है 1.04, ठीक है ना। अगर रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम 1 MB का, तो ये फाइल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या करना है, जो ये इमेज क्वालिटी 12 है उसको हम घटा के 11 कर दें। अब देखो ये 900 किलोबाइट हो गई। जी सर। तो ये तरीका है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इमेज क्वालिटी को 12 से 11 करके भी हम भेज सकते हैं।